This is Chandan Sahu, your English lover, once again on YouTube. Student, today I am going to discuss a very interesting topic, that is Money Madness, written by D.H. Lawrence. Student, it is very important thing that I am going to discuss. I am going to talk with you about that Money Madness written by D.H. Lawrence. It was the basic theme which depicted by the poet that the craziness of money among the human beings. He, in his poem, described such a thing in a very recent point of view, that is known Marxist point of view. What do you mean by Marxist? Marxist is such a modern notion that has been given by Karl Marx. Student, Karl Marx was the most famous philosopher in Germany who have made his research on human society and given the idea. That idea have been written in one book. That book is Communist Manifesto. In this book, Karl Marx have point out that the equal distribution of the wealth in this earth, there have a economical discrimination among the people. There have a economic hierarchy. Someone is the rich, someone is the poor. So that's why that type of discrimination have to be abolished. And this theory says that a nation have to distribute all of its wealth among the people, and then there can be established a very peaceful society. And that idea, or on that idea, the D.H. Lawrence have written his famous poem, The Money Madness. What is the matter? That we human beings are crazy for money. And one thing is very clear, that money gripped the modern world. It is very clear to all of you that money have a very cruel power upon human beings. People need money. Why they need money? Because to access the things. It is very clear. In nowadays, if we want to buy anything, if we want to fulfill our belly, if we want to get the treatment, if we want to stay inside the house, we need money. Money is very necessary for all of us. And it is very clear that for money, people are quarreling with each other. And it is the fact that not only money made us mad, but we human beings are also mad for Hello student money. So without money we have a tremor in life. So without money we know that we have to end up our life in the road. So some people in this world, or you can say every people in this world, need some amount of money to live a life. One thing it is very clear, that money have its own evil power, and that's why we are mad for money. We become very incensed for money. So we want to earn money anyhow. And that reason that the Karl Marx have given his idea that we have to abolish such type of economical discrimination, and we have to give a society that will be free from any fear of money. So now student, we'll go to the poem, that is Money Madness, written by D.H. Lawrence. He wrote, money is our madness, our vast collective madness. And of course, if the multitude is mad, the individual crying his own grain of insanity around with him. What happened? यहाँ पे राइटर ये बताए है, जो पैसे एक ऐसा चीज है जो आदमी को वो पागल बना देते हैं.
कोई एक इंसान पैसे के पीछे पागल नहीं है। हजारों, लाखों, करोड़ों और बोला जाए तो पूरा विश्व में हर कोई इंसान पैसे के लिए पागल है। एंड ऑफ कोर्स यह बात तो सच है, जब एक नहीं हर इंसान पागल हो जाएंगे तो एक भी इंसान को इस बीमारी से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पैसा एक ऐसे ही चीज होते हैं जो हर ह्यूमन बींग्स इस प्रकार बीमारी, द बीमारी ऑफ मैडनेस को कैरी करते हैं। नेक्स्ट लाइन में राइटर बोले हैं, आई डाउट इफ एनी मैन लिविंग हैंड आउट ए पाउंड नोट विदाउट ए पैंग एंड अ रियल ट्रेमर इफ ही हैंड आउट अ हैंड 10 pound note। Here writer says, यहां पे राइटर यही बताए है जो हमें तो यह भी संदेह होते हैं, जो इस दुनिया में ऐसे एक भी आदमी नहीं है जो पैसे के लिए नहीं डरते हैं, पैसे देने के लिए नहीं डरते हैं। ऐसे अगर उसको 1 रुपया का नोट निकालने के लिए बोलो या तो फिर 1 पाउंड का नोट निकालने के लिए बोलो, देने के लिए बोलो, तो उसका अंदर एक दर्द पैदा होते हैं। देने में दर्द लगता है। अगर उसको 10 रुपया या तो फिर 10 पाउंड के बारे में बोले तो वो डर जाते हैं, जो इतने पैसा हमें खर्चा करना पड़ेगा। यही होते हैं पागलपन पैसे के लिए। नेक्स्ट लाइन में, वी क्वेल मनी मेड अस क्वेल, इट हैज गॉट अस डाउन, वी ग्रोवल before it in strange terror, and no wonder, for money has a fearful cruel power among men। ये बात तो सही है, हम डरते हैं। राइटर बोल रहे हैं हम डरते हैं, और मानी पैसा हमें डराता है, और पैसा हमें उस जगह पर ले जाते हैं खींच पे जहां पर सच एक डरावानी परिवेश है, और जहां पे आदमी ये बात में भी आश्चर्य हो जाएगा, जो क्या है, पैसा का एक कुप्रभाव होता है, एक खराब प्रभाव होते हैं जो हर आदमी के साथ, हर आदमी के चारों साइड मंडरा रहा है। बट इट इज नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ, it is the collective madness of mankind, for mankind says with one voice, how much is he worth? Has he no money? Then let him eat dirt and go cold। so यहां पे राइटर ये बताए है पैसे के लिए, और पैसा एक ऐसा चीज है जिसके लिए हम डरते हैं। और क्या होते हैं, यह डर जो है कोई एक इंसान के अंदर नहीं है, हर किसी इंसान के अंदर पैसा का डर है। पैसा हमें डराता है, पैसा हमें पागल बना देते हैं, और हम इसलिए नहीं डरते जो पैसा हमें डराते हैं, हम इसलिए डरते हैं जो पैसे के लिए हम जैसे इंसान पागल है। हमारा भाइयों, हमारा बहनों, इस विश्व की जितने इंसान है हर कोई पैसे के लिए पागल है। सो इसलिए यह डर हर वक्त हमें सताता है, शायद यह पागलपन कभी ऐसे ना हो जाए हमें भी मार दे। और हर किसी को विचार किया जाए तो हर कोई अगर तुम्हें विचार करेंगे तो तुम्हें पूछेंगे तुम्हारा औकात कितना है, मतलब तुम्हारा पैसे कितना है। अगर तुम्हारा पास पैसा नहीं है तो तुम्हें इस दुनिया में जीवित रहने का भी कुछ अधिकार नहीं है। जाओ गंदा चीज खाओ, जाओ, घर तुम्हारा नहीं है और इसलिए तुम्हें बाहर ठंडे में सोना पड़ेगा। फिर राइटर बोल रहे हैं, एंड इफ आई हैव नो मनी देन दे विल गिव मी अ लिटिल ब्रेड सो आई डोंट डाई, बट दे विल मेक मी ईट दैट, with it I shall have to eat dot, and I shall have to eat dot। If I have no money, it is that I am frightened of, and that fear
can be a dream lump. It is a fear of my money, man, fellow man. So here it is clear that उन्होंने ये बोलने के लिए चाहते हैं, अगर तुम्हारा पास पैसे नहीं है तो डायरेक्टली जो अमीर इंसान है वो तुम्हें ये नहीं बोलेंगे जाओ मरो, बट तुम्हें वो करेंगे, तुम्हें मरने के लिए भी नहीं देंगे, और ना तो तुम्हें पेट भर के खाने के लिए देंगे, तुम्हें इतना तड़पाएंगे थोड़ा थोड़ा खाना देके, और तुम्हें मजबूर करेंगे जिंदगी में क्या करके, बहुत धीरे धीरे मृत्यु से आगे बढ़ने के लिए, मृत्यु की तरफ आगे बढ़ने के लिए। और उन लोग क्या करेंगे, तुम्हें यह गंदा खाना खाने के लिए मजबूर करेंगे, और अगर पैसा नहीं है तुम्हारा पास, हमारा पास, तो हमें यह गंदा खाना खाना ही पड़ेगा। एम्फासाइज दे के बताए, दो बार सेम लाइन को रिपीट किए, हमें इस गंदगी को ही साथ लेके चलना पड़ेगा और इस गंदा खाना ही खाना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं है तो आदमी बोल रहे हैं क्या होते हैं, एक डर पैदा होते हैं, और वो डर कौन सा डर है, दैट हमें जो एक इस पोजीशन में लेके जाते हैं जो हमारा जैसे आदमी पैसे के लिए पागल हो जा रहे हैं। तो हम कैसे उस बीमारी से बचे, वहां से मुझे छुटकारा कैसे मिले। अगर तुम्हें पैसा चाहिए कुछ खरीदने के लिए तो मुझे भी जरूरत है खरीदने के लिए, सो अगर तुम खाओगे तो मुझे भी खाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा पास पैसा नहीं है तो तुम जैसे भूखे मरोगे वैसे मेरा पास भी नहीं है तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। तब यह चीज आंखों के सामने देखते हुए आदमी पागल हो जाते हैं, क्या करने के लिए, न पैसे पैसे के लिए। देन राइटर बताए हैं, वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग ड्रेथ एंड दिस इज ऑल रॉन्ग। सो राइटर ये बोले हैं, कौन सा चीज, हमें जरूर कुछ ना कुछ पैसा रहना चाहिए हमारा पास, अगर हम इस गंदा खाना खाने से खुद को बचा। तो इसलिए क्या होते हैं, पैसे ही हर खराबी का मूल होता है। वी मस्ट हैव सम मनी, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है। पैसे के सिवा हम एक पैर भी कहां पर नहीं जा सकते, पैसे के सिवा इस दुनिया में हम कुछ भी नहीं कर सकते। देन राइटर बोले हैं, ब्रेड शुड बी फ्री, शेल्टर शुड बी फ्री, फायर शुड बी फ्री टू ऑल एंड एनीबॉडी, ऑल एंड एनीबॉडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइटर यहां पे एक सजेशन दिए हैं, जो उपदेश हम लोग को पहले ही हम बता चुके हैं, जो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क्स का जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो व्यू दिए हैं सबके लिए है। यहां पे कोई गरीब नहीं है और कोई अमीर नहीं है, हर कोई इंसान इस धरती में जो भी जन्म लिए है यहां पे उनका हक है जीवित रहने के लिए, उनका हक है इस पैसे में, और उसका हक है इस संपद में जो एक संप्रदाय के अंदर है। उन लोग रखे हैं जो पूंजीवादी संप्रदाय के विरोध कर रहे हैं, और राइटर ने राष्ट्र को एक संकेत और एक एडवाइस, उपदेश दे रहे हैं, जो क्या करना चाहिए। अगर इस दुनिया को इस बीमारी से बचाना पड़ेगा तो एक ही उपाय है, क्या है, खाना जो है उसको फ्री कर देना चाहिए, सबके अंदर बांट देना चाहिए। रहने के लिए जो घर चाहिए हर किसी को देना चाहिए, हर किसी का होना वो भी फ्री होना चाहिए जो सरकार देंगे, और एक वो पकाने के लिए जो गैस वगैरह ये सब चीज भी फ्री में देना। एज यू नो, आज तुम जानते हो दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव ऑल्सो एनफोर्स सच टाइप ऑफ पॉलिसीज to ensure the people will not die in hunger, will not stay in cold, and that's why they are distributing the gases, they are making the houses for
the poor people, and they are giving the rice, dal, like all those things, okay, to that poor people, sorry, to that poor people. And that's why, as per the advice of the writer, ये भी बताया है एक चीज, जो कोई एक इंसान को नहीं, किसी भी विचार से नहीं, अगर हर इंसान समान है तो इस पृथ्वी का हर कोने में रहने वाले हर इंसान को, एक को, ऑल एंड एनी बॉडी रिपीट किए हैं, ऑल थ्रू ओवर द अर्थ, इस वर्ल्ड में जितने हैं सबको ही खाना, पकाना और रहने के लिए घर, मतलब एक बात बोला जाए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब चीज फ्री में कर देना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेंजा में राइटर बताए हैं, वी मस्ट रीगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट इज वन थिंग और द अदर। सो राइटर यहां पे और भी एक एडवाइस दिए है, और यू कैन से द वार्निंग, एक वार्निंग भी दिए है, जहां पे राइटर ये बताए है, अगर पैसे के बारे में हमारा मन को साफ नहीं किया, वही अगर मैडनेस रह गया पैसे के बारे में, पैसे के पीछे आदमी अगर भागता रहा, तो खून खराबा, आंदोलन, ये बहुत कुछ, जैसे मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारा आंदोलन दुनिया में देख लिए है, रिवॉल्यूशन देख लिए है, ऐसे होगा। तो हम एक अपर को मारने से पहले ही हमें यह चीज लागू कर देना चाहिए, जो लागू होगा कौन सा, सबके लिए फ्री, हर कुछ चीज, खाना, पहनना, रहना और पकाना, ये सब चीज, ये अगर नहीं करेंगे तो एक दिन हम ह्यूमन बीइंग्स ही ह्यूमन बीइंग्स को मारने लगेंगे, क्योंकि सब कुछ चीज तो मानता है, भूख कभी सहता नहीं है। आदमी भूख में क्या कर सकता है पता नहीं, शायद चोरी भी कर सकता है, शायद मर्डर भी कर सकता है, कुछ भी। हम पैसे के लिए एक आदमी और एक आदमी को जख्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए कौन सा चीज करना चाहिए राष्ट्र को, जो इस उपाय से ह्यूमन बीइंग्स को बचा सके। थैंक यू स्टूडेंट, go to the text and line by line, if you have a problem then you can suggest to me and give me a comment in my comment section. Thank you once again, and please subscribe my channel, have a like and share it. Thank you. This is Chandan Sahu, your English love.